Okay, dear student, now let us take a very simple and tricky problem which is asked in the competitive exams. The question is, a parallel plate capacitor of capacitance given C is equal to 1 microfarad. Okay, as you know, parallel plate capacitor में दो parallel plates होती हैं, parallel होती हैं, and its capacitance C is given 1 microfarad. The capacitor is given charge such that plate 1 is given charge 2 microcoulomb and plate 2 is given charge plus 4 microcoulomb. And then we have to find out what is the potential difference across the capacitor. Okay. हम लोग कैपेसिटर जो पढ़े हैं उसमें क्या देखा, एक प्लेट सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो इसको तो हम लोग बहुत इजीली जानते हैं कि जो V होगा ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q ऑन ईच प्लेट. अगर एक प्लेट पर 2 माइक्रोकूलम है, दूसरे पर 4 माइक्रोकूलम है, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q. इसको अगर हम देखें, नेचुरली वी फाउंड दैट इसको हम लिख सकते हैं 3 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, and here we can write 3 plus 1 microcoulomb. What it means? It means that it is supposed to be a capacitor, a plate having charge plus 1 microcoulomb, and this is supposed to be a plate having charge minus 1 microcoulomb. 3 कूलम माइक्रोकूलम इस पर है, 3 माइक्रोकूलम इस पर है, तो वो उससे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं. इफेक्ट किससे पड़ा? जो एडिशनल 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर गया और जो माइनस 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर और है. तो आप इसको कह सकते हैं द चार्ज ऑन द कैपेसिटर is Q is equal to 1 microcoulomb, that is 10 to the power minus 6 coulomb. ये समझना बहुत आवश्यक है. अगर अंश प्लस क्यू माइनस क्यू जैसे नहीं दिख रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से कर लीजिए कि एक प्लेट पर उतने ज्यादा चार्ज हो, पॉजिटिव हो, और दूसरे पर उतना ही निगेटिव हो. तो ये किसी भी सिचुएशन में अगर आ जाए ऐसा, तो आप मान सकते हैं जो एडिशनल चार्ज इस पर प्लस जा रहा है और इस पर माइनस जा रहा है, इट मींस इट इज कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है जिस प्लेट पर वही मीनिंगफुल होता है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स would be V is equal to Q upon C, and what is the value of Q? 10 to the power minus 6 upon C, 10 to the power minus C, that is 1 V. So the problem is very simple, but what you have to do is you have to apply your mind, and this problem reduces to this when if you add 3 plus 1 microcoulomb and 3 minus 1 microcoulomb. इसका मतलब ये हुआ 3 को अगर हम एक रेफरेंस ले लें, इसमें प्लस 1 माइक्रोकूलम ज्यादा हुआ, इसमें माइनस 1 माइक्रोकूलम माने 1 माइक्रोकूलम कम हुआ, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव. ओके, इसके कंपैरेटिवली ये माइनस 1 माइक्रोकूलम इसमें जो है करने से ये 2 माइक्रोकूलम हो गया, और इसमें प्लस 1 करने से 4 माइक्रोकूलम हो गया. तो द स्ट्रक्चर इज सपोज टू बी जस्ट लाइक माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम, ये मान सकते हैं. सो द पोटेंशियल दैट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IIT or you can say JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन. सो दैट्स important question. You should remember this concept. Okay, let us take another typical problem which is
written here, two capacitors of capacitance C and NC are connected in parallel across V volt supply. If they are charged, fully, the battery is removed and a dielectric constant K is inserted between the plates of first capacitor, then find the new potential difference across the combination. That's the question. Suppose we have given a capacitor having capacitance C and second one have capacitance NC, and V potential difference is applied through a battery. When the capacitor is charged, this is the first case. The equivalent capacitance of combination, that is equal to C plus NC is equal to 1 plus N into C. So the charge on the arrangement, what would be? Q is equal to C dash into V, that is 1 plus N into CV. Now in the second case, if the battery is removed, means charge still remains the Q and a dielectric constant K is inserted between the plates of capacitor, which is C1 dash, let the second one is the NC. This is the NC, and if V dash is the potential difference across that one, then naturally we have to find out the potential difference across the new combination. That is our question. Second case, the equivalent capacitance C double dash is equal to C1 dash plus C2, that is K C plus NC is equal to K plus N into C. And the charge remains same. Charge तो वही रहेगा. The charge on the second arrangement will remain same. जो चार्ज कंजर्व रहता है, अभी कोई एक्स्ट्रा बैटरी तो अप्लाई नहीं की गई है, तो इसके बीच में चार्ज उतना ही होना चाहिए या होगा. अब व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, P डैश है. तो अब निश्चित रूप से पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए क्या तरीका है, द पोटेंशियल डिफरेंस V dash is equal to total charge upon total capacitance. टोटल चार्ज कितना था, पहले जितना था हमने निकाला था अभी जस्ट पहले. चार्ज 1 प्लस एन सी बी, 1 प्लस एन इंटू सी बी. अपॉन इस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, K प्लस एन इंटू सी. तो C से C कट गया. सो वी हैव
इक्वल टू n+1 अपॉन k+1 इंटू वी पी डैश। ध्यान रहे, अगर सेम होता कोई फर्क न पड़ता, वही कैपेसिटर अगर बैटरी हटा देते तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर उतना बना रहता। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। तो अब उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखने से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, और कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, चार्ज सेम रहना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रभावित होगा नेट इक्विवेलेंट का। वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा n+1 अपॉन k+1 सॉरी k+n। ओके, k+n। अब आप कल्पना करें, इमेजिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एक से ज्यादा होगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, तो V डैश क्या हो गया, V डैश नेचुरली लेस देन हो गया V से। पहले जो सप्लाई बैटरी से दी गई थी जिस पर चार्ज हुआ था, अब उसको अगर हम एक प्लेट में इंसर्ट कर दिए तो अब उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अर्लियर की कंपैरिजन में कम हो गया है। सो दैट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द जेईई मेंस। जेईई मेंस में ये पूछा गया है, 2019 में ही पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का समझ रहे हैं तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम whether it is technical or simple. Okay, that's all.